Good evening, everyone. Welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine and had a restful weekend. Today is Monday, the 18th of May 2026. And as we speak, the US markets are trading rather flat with the NASDAQ and S&P marginally red and Dow displaying some strength in terms of buying in certain spaces and pockets. I don't see the market structure to be very, at least the intraday market structure to be very conducive, but we will see how the US market session progresses. On the India front, we closed marginally flat on the large cap end. The mid and small caps took a little bit of beating today. Certain pockets of the mid and small cap showed buying strength in H2, but then selling power persisted, and we still closed in red on the small cap, the micro cap, and the mid cap index. Nifty 50 remained largely flat, as I mentioned, with certain small caps leading the pack and the rest typically declining. Anyways, let's come and jump to the topic of this video, which is risk management and the most practical way of risk management, to be precise. And let me quickly share my screen, and then we will go forward and look at some charts as well to understand this better. Quick disclaimer before we start. I am not a SEBI registered research analyst or investment advisor. All the stocks or any content that I discuss on my channel is primarily from an educational standpoint. Do not treat any of the stock names that I discuss as a buying or selling recommendation. Do your own research, consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Thank you for your attention, and let's move forward. The topic of today's video, like I mentioned earlier, is risk management the practical way. This riskometer is something that we see on the on the fact sheet of many mutual funds. I do not treat that as a relevant metric of judging or understanding risk. You should look at the standard deviation, the rolling volatility, and many more factors when you're evaluating a mutual fund. This meter is not sufficient. Having said that, the topic today is not in line with mutual funds, but is more so to do with swing and positional traders. If you're a long-term investor, this may not be relevant for you, but I would recommend you to watch this video so that you can understand and apply this concept on your own portfolios as well. Before we move forward, this is something interesting that was shared to me, or rather, I found this on Twitter, wherein the symbol for crisis or risk, I think it's the symbol for crisis, not risk, but it is very similar. The concept is very similar to risk. In Mandarin, in Chinese, is a blend of danger and opportunity both. So the symbol on the left represents danger, the symbol on the right represents opportunity, and this put together form the word crisis in Mandarin. So I think this is a brilliant way to understand, I think, what risk means to us. You need to take some risk if you want to grab the opportunities in life. That not only is relevant to trading, but I think it's applicable to all other aspects of life as well. But anyways, without wasting any further time, let's quickly try and understand what I mean by risk and how I define risk. So risk to me in the most practical way, of course, is I judge or analyze risk on an individual trade basis. तो मतलब अगर एक स्पेसिफिक स्टॉक या ट्रेड में स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ या फिर एक स्पेसिफिक ट्रेड ले रहा हूँ, मैं उसका रिस्क अलग से डिफाइन करता हूँ, उसका रिस्क अलग से कैलकुलेट करता हूँ, एंड देन आई सी इट रिलेटिव टू माई पोर्टफोलियो. So I try to calculate portfolio risk depending on each position. There are two variables to control if you want to control portfolio level risk. One is your position size, second is your stop loss. I'm going to define each of them in detail and try and make you understand कि क्या ideal position size होता है, क्या ideal stop loss होता है. But let me just quickly double down on this concept. आपको ये करने की ज़रूरत क्यों है? अगर आप एक स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर हैं, आपका कैपिटल आपको प्रोटेक्ट करना इज योर फोरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. इफ यू डोंट हैव योर कैपिटल, यू डोंट हैव द अंडरलाइंग जो बेस लाइन चीज है जिसके ऊपर आपको रिटर्न जनरेट करना है, वही आपके पास नहीं रहेगा. तो यू कैनॉट लेट एनी ट्रेड ब्लीड. आप अपने पोर्टफोलियोज पे 20-30% लॉसेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पर ट्रेड. ठीक है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी हो जाती है. बट एज अ स्विंग इन पोजिशनल ट्रेडर, you need to have stop losses in place. You need to accept defeat when the market tells you. You need to move on to the next trade. ठीक है, आपको ईगो बैटल में नहीं जाना है स्टॉक के साथ. अगर वो स्टॉक नहीं चल रहा है, हमें उससे बाहर निकलना है और अपने कैपिटल को एक दूसरे स्टॉक के अंदर यूज करना है जहां पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज दिख रही है.
सो बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट विद दिस क्राइटेरिया. पोर्टफोलियो रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है. आई वॉन्टेड टू कवर दिस अर्लियर, मुझे करना चाहिए था, बट देन देर वर मल्टीपल टॉपिक्स दैट आई हैड टू कवर. तो इसलिए मैं रिस्क मैनेजमेंट वीडियो अभी बना रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ईच एंड एवरी स्विंग इन पोजिशनल ट्रेडर नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट बिफोर दे इवन स्टार्ट देयर फर्स्ट ट्रेड. एंड यार मेरा मानना ये है कि पेपर ट्रेड्स लेने से कभी भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं सीख पाओगे. आप चाहे एक शेयर के अंदर इन्वेस्ट करो, बट बाय दैट वन शेयर, बिकॉज यू नो जब आप उस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे खुद अपना पैसा, एंड यू विल सी द पोर्टफोलियो यू नो गोइंग इनटू अ लॉस एक्सेट्रा, दैट इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर. पेपर ट्रेड्स के अंदर आप कोई रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल नहीं भी लगाएंगे तो चलता है यार, आपका पैसा नहीं डूब रहा है. बट यू नीड टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट इन रियल लाइफ टू अंडरस्टैंड दिस. बट इसको ना थ्योरेटिकली प्लीज समझो, ताकि आप इसे अपनी रियल लाइफ ट्रेडिंग फ्रेमवर्क के अंदर इनकॉर्पोरेट कर पाओ. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट्स टेक अ वेरी क्विक एग्जांपल. अगर मुझे पोर्टफोलियो लेवल रिस्क एनालाइज करना है, एंड मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपए का टोटल पोर्टफोलियो है, ये जो पहला वेरिएबल है ये पोजीशन साइज है. पोजीशन साइज क्या था? आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इन प्रपोर्शन टू योर टोटल पोर्टफोलियो. मतलब 10% पे मैं कैसे अराइव कर रहा हूँ. अगर मेरा पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है तो उसका 10% इज 10,000 रुपीज. तो if I'm investing 10,000 rupees in a particular stock, out of my total portfolio of 1 lakh rupees, my position size is 10%. This is something that you have to define. आप एक रैंडम अमाउंट एक रैंडम स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. आप स्टॉक को सिलेक्ट भी कर लीजिए, आप अच्छा स्टॉक भी पकड़ लीजिए, अगर आप ये प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट आर यू डूइंग, राइट? यू नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क, यू नीड टू हैव अ प्रिंसिपल इन प्लेस. ठीक है? आप अपने पोजीशन साइज को चेंज कर सकते हो बेसिस योर कन्विक्शन इन द स्टॉक. मैं ऐसे पर्टिकुलरली नहीं मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं ट्रीट करता कि भाई ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर मुझे ज्यादा रखना है एक्सेट्रा. आई विल फॉलो अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉर दैट. मैं उसमें पिरामिडिंग कर लूंगा अगर मुझे उसमें स्ट्रेंथ दिख रही है, बट मैं बेस लाइन कन्विक्शन ऐसे डिसाइड नहीं करूंगा. ऑफकोर्स देर आर सेटअप्स, देर आर 5 स्टार सेटअप्स, देर आर सेटअप्स विच आर रिलेटिवली वीक, बट आप उसमें ट्रेड करते हैं बिकॉज मार्केट कंडीशंस आर कंड्यूसिव एंड एवरीथिंग इज फ्लाइंग. सो डिपेंडिंग ऑन योर सेटअप, ऑफ कोर्स आप इस पोजीशन साइज को डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली हर स्टॉक को एज एन इंडिविजुअल स्टॉक ट्रीट करता हूँ. ऐसा नहीं कि भाई अगर उसके अंदर फंडामेंटल प्ले सॉलिड है या फिर एक बहुत बड़ी कंपनी है तो मैं उसके अंदर पूरा पोजीशन पूरा पूरा पोर्टफोलियो डाल दूंगा. आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस क्राइटेरिया, एंड यू विल ऑल्सो हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर क्राइटेरिया इफ यू वांट टू प्ले दिस इन अ सस्टेनेबल वे, इफ यू वांट टू ट्रेड इन अ सस्टेनेबल मैनर. Anyways, having said that, position size multiplied by your stop loss will give you your total portfolio risk per trade. तो मान लीजिए आपने एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट किया, फर्ज करते हैं टाइटन. ठीक है? टाइटन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है. अगर मान लीजिए उसका प्राइस एक्शन वगैरह सब सूटेबल है, आपने उस स्टॉक के अंदर 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, टोटल पोर्टफोलियो आपका 1 लाख रुपए है. आई नो इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर्स अलाउड नहीं है, हो सकता है टाइटन का शेयर 4,500 4,000 समथिंग का है, आप उसके एग्जैक्टली 10,000 इन्वेस्ट नहीं कर पाए. बट देन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं कि आप 10,000 रुपीज उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो साइज. नाउ विलियम ओनील की स्ट्रैटेजी या विलियम ओनील का एनालिसिस जो कैंसलिंग फ्रेमवर्क है, वो तो कहता है कि 8% आपका हार्ड स्टॉप लॉस होना चाहिए. अब स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड करना है उस पर ये वीडियो नहीं है, मे बी मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊं. बट मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव देता हूँ कि 8% आप मान लीजिए आपने हार्ड स्टॉप लॉस रखा, इसका मेरिट क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, प्लीज गो ऑन द इंटरनेट, टाइप विलियम ओनील्स हार्ड स्टॉप लॉस फ्रेमवर्क, हार्ड स्टॉप लॉस प्रिंसिपल, और आपको चैट जीपीटी, क्लॉड, इंटरनेट पे हर जगह ही मिल जाएगा कि 8% पे कैसे अराइव करें. बट मैं आपको एक सिंपल वे में ये समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए आपका 8% आपका हार्ड स्टॉप लॉस है, 10% आपकी पोजीशन साइज है, तो टोटल पोर्टफोलियो पे आपका रिस्क फ्रॉम दैट ट्रेड इज ओनली 0.8%. You get where I'm going with this? If I put in 10,000 rupees और 10,000 रुपीज पे मैं 8% लूज कर सकता हूँ, तो मेरे टोटल पोर्टफोलियो का परसेंटेज कितना हुआ? वो 0.8%, विच इज नेग्लिजिबल, राइट? 100% में से अगर मेरा 0.8% पोर्टफोलियो वाइप आउट हो जाता है, डज दैट अफेक्ट मी? नो, इट डज नॉट. नॉट टू दैट एक्सटेंट कि भाई मेरे मेरे ट्रेडिंग जर्नी के अंदर कुछ मेजर इम्पैक्ट आएगा. अगर 0.8% लूज करता हूँ तो मेरे पास 99.2% कैपिटल तो अवेलेबल है. तो आप हर ट्रेड को अगर इस ऐसे सोचेंगे तो देन यू विल नॉट यू विल नेवर बर्न योर फिंगर्स इन अ ड्रामेटिक मैनर. अगर आप 10% पैसा लगा रहे हैं, अगर आपने 10,000 रुपये लगा दिए, आप ऐसे मत सोचो कि वो 10,000 रुपये पूरे डूब गए.
आप ऐसे सोचो कि भाई मैं अगर 10,000 रुपये लगा रहा हूँ मेरे टोटल पोर्टफोलियो से, और मैं उस पर 8% का रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरा रिस्क 8% ही है। मतलब 0.8% एज अ टोटल, एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। ये मत सोचो कि भाई मैंने 10% अपना पैसा पोर्टफोलियो का इसमें लगा दिया तो मेरा 10% रिस्क पे चले गया। आपका बस 0.8% रिस्क पे गया है। योर पोर्टफोलियो लेवल रिस्क इज जस्ट 0.8%. यू आर नॉट गोइंग टू लूज 10,000 रुपीज, राइट? इफ यू वर टू लूज 10,000 रुपीज, दैट वुड मीन दैट आप 10% ऑफ टोटल पोर्टफोलियो लूज कर रहे हो, विच इज अ बिग बिग रिस्क दैट यूर टेकिंग पर ट्रेड. So the only way to change portfolio risk is either through lowering your position size or through tightening your stop loss. ये 8% का मैं अगर 5% कर दूं और पोर्टफोलियो पोजिशन साइज 10% ही रखूं, तो मेरा ये नंबर 0.5 हो जाएगा. अब एक और चीज बताता हूँ, वेरी प्रैक्टिकल अगेन. अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेमवर्क के हिसाब से आप सेटअप्स को ग्रेड कर पाते हो और कन्विक्शन ज्यादा है किसी स्क्रिप्ट के अंदर, आपको पोजिशन साइज बढ़ाना है, बट अगर आपको पोर्टफोलियो रिस्क मेंटेन करना है, तो आप क्या कर सकते हो? सिंपली आप स्टॉप लॉस को टाइट कर दो. अगर इतनी हाई कन्विक्शन बेट है, इतना ज्यादा पैसा आपको लगाना है, मान लो आपको 30% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो आपके इस पर्टिकुलर ट्रेड में लगाना है, बिकॉज आप कहते हो दिस इज अ हाई कन्विक्शन बेट. In order for you to maintain this 0.8% stop loss, you will have to 0.8% portfolio risk, you will have to adjust your stop loss accordingly, है ना? तो अगर मान लीजिए ये 10% पोर्टफोलियो है, इसको मुझे 30% करना है, तो मुझे सब्सिक्वेंटली इस 8% को भी चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं 0.8% को मेंटेन कर पाऊँ. 0.8% जरूरी नहीं है, आप 1% रिस्क भी ले सकते हो पर ट्रेड, आप 5% भी ले सकते हो. आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट. आई एम जस्ट हियर टू टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ अप्लाइंग रिस्क मैनेजमेंट इन जनरल. नाउ इट इज एब्सोल्युटली ऑन यू कि आप कितने अग्रेसिव हो, कितने पैसिव हो, कितने सेफ खेलना चाहते हो, कि आपको टोटल पोर्टफोलियो रिस्क कितना लेना है पर ट्रेड. You can go all in also, yeah. You can put 100% of your money in one stock as well. I don't recommend that. I will absolutely not recommend that. But there are people who do like 2 or 3 positions only. They're like 3 स्टॉक में पैसा डालूंगा, extremely high conviction bets. I want to play it out like a positional trade. 24 महीने तक hold करूंगा, and we'll see how it goes. But you need to have an extremely tight stop loss in such cases. वो लोग 5% 4% stop loss पे खेलते हैं. I know a person. His position size typically is either he does 12.5, 25% और 50%. मतलब वो 12.5% अपने टोटल पोर्टफोलियो का तो लगाते ही है, एंड ही हैज अ पोर्टफोलियो इन डबल डिजिट करोर्स. एंड वेरी सीनियर गाय ऑफ कोर्स, एंड ही टोल्ड मी कि भाई 3-4 स्टॉक से ज़्यादा मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता ही नहीं हूँ. बट ही हैज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रूल एंड प्रिंसिपल. उनका एंट्री इतना प्रिसाइज होता है कि उनका स्टॉप लॉस रेयरली हिट होता है, उनका विन रेट बहुत हाई है. So, I mean, that's another level of skill that you develop over a period of time. Precise entries, very, very, very strict principles. But मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन थ्रू दिस वीडियो. ठीक है? पोजीशन साइज 5% हो सकती है, 10% हो सकती है, 20% हो सकती है. इन जनरल मैं आपको बता दूं, मैं टिपिकली 5% पोजिशन साइज पे ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ फॉर स्विंग ट्रेड्स, एंड 10% फॉर पोजिशनल ट्रेड्स. पोजिशनल ट्रेड्स बेसिकली वो होती हैं जिसमें आप फंडामेंटल्स के ऊपर भी वेटेज डालते हैं, तो मेरी कन्विक्शन थोड़ी हाई होती है और मैं उन ट्रेड्स या उन स्टॉक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा रूम देता हूँ. यू कैन मैनेज योर ट्रेड थ्रू द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज वेल, जो स्टॉप लॉस या सेलिंग प्रिंसिपल पे आ जाता है. बट पोजिशन साइज आप किसी और वे में डिसाइड नहीं कर सकते हो. आपको पोजिशन साइजिंग, आई डोंट थिंक देर इज अ फ्रेमवर्क टू इट. आप अपने माइंड में एक मेंटल मॉडल बना लो कि भाई मुझे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर 10 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक नहीं चाहिए, तो आपका नेचुरली पोजीशन साइज 10% हो गया. अगर आप कहते हो मैं 20 स्टॉक्स मैनेज कर सकता हूँ, 5% हो गया. इफ यू वांट टू डू अ स्प्लिट बिटवीन स्विंग एंड पोजिशनल, यू कैन डू 5% ऑन स्विंग, 10% ऑन पोजिशनल. दैट इज अप टू यू. बट आई हैव गिवन यू अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे यूज कर सकते हो इन द मोस्ट प्रैक्टिकल मैनर. ठीक है? हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाएंगे बिकॉज मैं पर्सनली उनको यूज नहीं करता हूँ. ऑफ कोर्स आई हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पेस. आप बहुत सिंपल स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हो. अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज या लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स है उन पे कवर्ड कॉल बेच दो. आउट ऑफ द मनी ओटीएम कॉल ऑप्शन सेल कर लो, गेट सम रेंटल इनकम ऑन योर लॉन्ग टर्म पोजिशंस. बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच हियर और ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर.
मैं आपको कैश सेगमेंट के अंदर स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर बिना डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स एंड बिना लेवरेज यूज किए रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं वो सिखाना चाह रहा हूँ। पोजीशन साइज डन। स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया आप कैसे सेट कर सकते हैं। हार्ड स्टॉप लॉस यूज कर लीजिए जैसे विलियम ओनील का है। मेंटल स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो आप 5-6% का। यू कैन यूज द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस 10 EMA 5 EMA 21 EMA डिपेंडिंग ऑन हाउ अग्रेसिव you want to play, and that's how you can manage the risk of any trade. बहुत quickly we will just move to the charts. So this is the micro cap index of course. एक बार मैं दो stocks ले लेता हूँ। Let's say G Ship। आपकी स्क्रीन पे जो येलो लाइन है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। आपको अगर आपको ईएमएस के बारे में नहीं पता, आई हैव मेड अ वीडियो ऑन ईएमएस, व्हाई आई यूज द 10 डे, व्हाई आई यूज द 21 डे। फुल अंडरस्टैंडिंग मैंने दी हुई है अपने मेरे चैनल पे वीडियो है, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल, यू कैन वॉच इट। आई यूज द 10 EMA विच इज द येलो लाइन फॉर माई स्टॉप लॉसेस। जी शिप ट्रेड के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लीनियर मूव आई अपवर्ड्स, यहाँ पे बेस फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे एक ट्रू बेस बनना शुरू हुआ एंड बेस जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर चढ़ गया और उसके बाद से ये अपने 10 डे EMA को ट्रेल कर रहा था। यहाँ पे 10 डे EMA कट हो गया, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आपने एग्जिट कर दिया। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग मूव आ गई आज 18 मई के दिन। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ठीक है। आप बट आपने ये अगर आप यहाँ पे प्रेसाइजली एंटर करते जहाँ पे मैंने भी एंट्री ली थी, जस्ट एज क्विक डिस्क्लेमर, you could make around 10 to 12% in just 2 days and you could exit the trade। ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू हाउ टू एंटर दी स्टॉक्स एक्सेट्रा, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स लुक एट एमटार टेक एज वेल। हमने एक एग्जांपल ले लिया जहाँ पे स्टॉप लॉस बेस्ड ऑन ईएमएस डिड नॉट वर्क इन द मोस्ट फेवरेबल फैशन, बट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट विद योर रूल्स। ये एक पर्टिकुलर ट्रेड है जिसमें ये प्रिंसिपल शायद मोस्ट एक्यूरेट वे में नहीं चला, बट स्टिल इवन आफ्टर द स्टॉप लॉस ऑफ 10% यू मेड अ साइजेबल गेन इफ यू एंटर्ड एट द राइट टाइम। अगर आप यहाँ पे भी एंटर करें और आपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल किया, आपने 15 दिन में 7-8% कमा लिया यार, विच इज अ गुड रिटर्न। ठीक है। लेट्स लुक एट अनदर स्टॉक वेरी वेरी क्विकली। एमटार टेक। इस पे दो बारी बेस ब्रेकआउट हुआ है, बेस फॉर्मेशन हुई है, मैंने दोनों बार ट्रेड किया है। क्विक क्विक डिस्क्लेमर अगेन, लीनियर लेग अप 94% मूव, नॉन डायरेक्शनल मूव हियर, बेस फॉर्मेशन ब्रेकआउट, आई हैव ट्रेडेड दिस ब्रेकआउट। इसके अंदर भी अपने 10 डे EMA के ऊपर ही रहता है, सो यू कैन ट्रेल द 10 डे EMA। फिर अगेन कंसोलिडेशन हैपेंस, नॉन डायरेक्शनल मूव, वॉल्यूम्स ड्राइंग अप, अ बेस ब्रेकआउट अगेन। उसके बाद से एक भी ऐसा दिन नहीं आया है जो ये स्टॉक अपने 10 डे EMA को ट्रेल ना किया हो या उसके नीचे क्लोज किया हो। So this is where we are on MTAR Tech as well, right? This is the power of the 10-day exponential moving average. It could be 5-day, it could be 21-day, depending on whatever you want to use as your risk management principle and framework. But मैंने आपको 10 day के हिसाब से एक example दिखाया है. This is how you can play with your selling, right? मेरे हिसाब से in my personal understanding and view, selling is an acquired art. जितना आप ट्रेड करेंगे उतना आप बेटर हो जाएंगे सेलिंग पार्ट में। बाइंग के लिए आप फिर भी स्ट्रिक्ट रूल्स बना सकते हैं कि भाई ये वॉल्यूम एक्स से ऊपर है, पॉकेट पिवट है, बेस ब्रेकआउट है, XYZ, राइट। बट सेलिंग इज एन आर्ट जो आप थोड़े टाइम में सीखेंगे, जब जब एज इन व्हेन यू डू मोर ट्रेड्स, दैट इज हाउ इट विल गेट बेटर, right? So that is all for this video. I will try and make a detailed video on stop loss. How do you decide stop losses, hard stop loss, mental stop loss, moving averages से exit कैसे लेना, etc. in a detailed fashion. इस पे एक वीडियो बनाते हैं sometime soon. But I will see you guys in the next one. Until then, you guys take care and have a nice week ahead. Bye bye.